Hello student, an object here एक problem is there and from concave lens. An object is placed at a distance of 60 centimeter from a concave lens of focal length 30 centimeter. So we have to find the distance of the image from the lens and draw a ray diagram and answer the characteristic of the image. यानी एक्चुअली ये 3 बीट का क्वेश्चन है. आपको डिस्टेंस यानी v निकालना है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस, दैट मीन्स v, and draw a ray diagram and characteristically write their characteristic of the image. So first of all we are going to check out the data which one is given. So here distance of 60 centimeter an object, and object distance is given. So we are here, that it means u is equal to 60 centimeter. Okay. Next on focal length 30 centimeter, and focal length 30 centimeter. Okay. And the first bit is there ki find the distance of the image, and v, what is v. Okay. So already here mentioned that that lens is concave lens. Okay. So what is the formula of lens? The lens formula, one by v, 1 by f, 1 by v minus 1 by u. This formula is correct to both the lens, either concave or convex. बोथ दोनों लेंस के लिए फार्मूला मान्य है, सही है. बट हेयर वी हैव टू कंसीडर सम साइन कन्वेंशन ऑफ दिस लेंथ. तो यू नो दैट कि दिस टाइप कॉन्केव लेंस इसलिए कन्वेक्स लेंस, दैट इज ए प्रिंसिपल एक्सिस और दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर. concave lens, the concave lens, their optical center is there, so it has f and 2f focus here or there. But what will happen here ki all the distance of the object or image is measured from the optical center, or by the sign convention we know कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज आल्सो इन्वॉल्व हियर. तो यू ऑब्जेक्ट, अगर सिंस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड दिस साइड, देन वी राइट हियर नेगेटिव साइन फॉर द यू. तो हियर यू इज नेगेटिव साइन, focus is also is there, the focus also will be negative sign. So now we are going to find the v, where image is formed. The 1 by f means 1 by 30. We have to find v, the first of all. So now put the value of f and u. So f is minus 30 and 1 by minus 30 centimeter plus u is 60 centimeter, minus 60 centimeter. So here minus 1 by 30 and minus 1 by 60. So their LCM is 60, 2 plus that means 3 by 60, that means 1 by 60. Then v will come, then v will be minus 20 centimeter. So what is the meaning of that minus negative signs? So that means कि image and object both is same side. U is negative, also image must be negative. तो ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि कनकेव जो लेंस होता है उसमें दो पोजीशन हम लोग फॉर्मेशन जब देखते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव लेंस, तो इसमें दो तरह का देखते हैं. या तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट पे रखते हैं
तो उसका जो इमेज बनता है बहुत डिमिनिश्ड, बहुत छोटा बनता है, और देयर इमेज फॉर्म एट फोकस। अगर वो इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट तब इमेज फोकस पे बना। और इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होता है, तो उसका जो इमेज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनता है। तो दो ही हम लोग कंडीशन ही जानते हैं इसके लिए, जबकि हम लोग कन्वेक्स मिरर में देखे थे कि 6 पोजीशन होता था इमेज फॉर्मेशन का, जिसमें 5 ठो रियल होता था, 1 ठो वर्चुअल होता था। लेकिन इसमें दोनों जो होगा बेसिकली अगर देखा जाए तो दोनों का दोनों वर्चुअल ही होगा। का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों जो है एक ही साइड है, मिरर के सामने ही, फ्रंट ऑफ मिरर, यानी V इज 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर नहीं, लेंस। वी हैव टू डूइंग लेंस प्रॉब्लम, we are doing lens problem, so that has okay. Now first bit, find the distance is complete. Draw a ray diagram, image from the lens, draw a ray diagram and answer the characteristic of the image. तो इमेज का कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग रे डायग्राम डालेंगे। और तो इसके पहले हम लोग कि इमेज छोटा होता है कि नहीं होता वो कैसे पता चलेगा, तो वी हैव टू फाइंड देयर मैग्निफिकेशन। तो वी नो दैट कि m इज इक्वल टू V बाई यू। ओके, यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि ये लेंस है, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, माइनस V बाई यू नहीं, प्लस V बाई यू लेंगे। ओके, तो मैग्निफिकेशन में भी आपके पास आया -20 और E ऑलरेडी गिवन हियर 60, देन इट कम आउट 1/3। तो m इज इक्वल टू 1/3। तो m का मतलब आप जानते हैं कि और भी HI/H0 1/3। तो आप इससे ये पता कर सकते हैं कि H0 क्या हुआ, आप HI इज इक्वल टू 1/3 H0। इससे आप क्लियर समझ गए हैं कि जो इमेज होगा वो इमेज का जो हाइट होगा वो इससे 3 गुना कम होगा, 3 टाइम्स कम होगा उससे। किससे? तो ऑब्जेक्ट से। तो छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया भाई, 3 टाइम्स। तो नेचर में इस आधार पे हम लोग इसका नेचर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि एक तो है कि ये इसका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा इधर ही बन रहा है, ये छोटा बन रहा है और वर्चुअल बनेगा आपको। तो वर्चुअल का मतलब कि इरेक्ट बनेगा। तो नेक्स्ट बीट में हम लोग इसको देखते हैं कि ड्रॉ ए रे डायग्राम, उसके आधार पे फिर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। तो नाउ इसके सेक्शन बी हम लोग देखते हैं। ये तो आप लोग समझ गए, इससे डाटा मिल गया है दोनों। अब बी के लिए हम लोग आते हैं कि ड्रॉ ए रे डायग्राम। तो एक हम लोग कनकेव लेंस बनाते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, ऑप्टिकल सेंटर, ओके, फोकस 1, फोकस 2। ऑलरेडी वी नो यार कि दैट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर। ओके, तो दैट डिस्टेंस इज, दैट मीन्स क्या 2f इज इक्वल टू 30 यानी 60 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट इज वेयर, तो एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। ओके, तो ए बी, तो एक पैरेलल लाइन वो गया और ये डाइवर्ज हुआ, तो ये लगेगा कि फोकस से निकल के
आ रहा है। ओके, तो व्हेन ए पैरेलल लाइन गोज थ्रू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दे डाइवर्जेस और लुक्स एज ए कम आउट फ्रॉम द फोकस। सेकेंड वन कि जब सेकेंड रेज हम लोग पास करवाते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, तो गोज स्ट्रेटली विदाउट डिविएशन, बिना डिविएशन के, तो आपका यहां पे ए डैश बी डैश इमेज, मतलब इसका इमेज यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। कहाँ पे फॉर्मेशन हुआ? तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो ये कंडीशन भी था कि आप ऑप्टिकल सेंटर से इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखोगे तो आपको कहाँ मिलेगा इमेज? तो एफ और ओ के बीच में। अगर व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इन्फिनिटी देन देयर इमेज फॉर्म एट फोकस। तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं था कि इन्फिनिटी पे दोनों के बीच में कहीं था, यानी 60 सेंटीमीटर, यहाँ तो क्लियर दिख भी रहा है। तो ये इमेज जो होगा इरेक्ट है। तो इरेक्ट के साथ आप प्रॉपर्टी जानते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक में आप या नेचर ऑफ इमेज किस तरह का है, इसमें आप लिख सकते हैं एक दो पॉइंट देकर, जो आंसर भी है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज। तो पहला तो आप लिख सकते हैं भाई कि सेम साइड है, इमेज विल बी सेम साइड, यानी फ्रंट ऑफ मिरर सेम साइड, यानी कि फ्रंट ऑफ लेंस, मिरर नहीं लेंस हर समय। सेकेंड वन आप लिख सकते हैं कि ये इरेक्ट है, इरेक्ट है, तो इरेक्ट का मतलब हो जाता है कि ये वर्चुअल है, इरेक्ट एंड वर्चुअल। सेकेंड वन इमेज देखकर यहाँ आपने देखा कि इमेज जो है 1/3 टाइम्स ऑब्जेक्ट के है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्मॉलर हुआ, डिमिनिश्ड हो गया। तो अब स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये क्लियर हो गया। तो ये आपका प्रॉब्लम यही समाप्त होता है। ओके।